Bismillahirrahmanirrahim. Now we discuss the structure of the breast. Breast is divided into three parts: skin, parenchyma, and stroma. Parenchyma is also called mammary gland. Skin covers the gland. Its conical portion called nipple. Nipple present just below the center of the breast at the level of fourth intercostal space, 10 centimeter away from midline. Here we can see breast nipple present just below the center of the breast, 10 centimeter away from the midline and the fourth intercostal space. It is pierced by 15 to 20 lactiferous duct. Here we can see these are the lactiferous ducts, and these are the 15 to 20 numbers, and pierce the nipple of the breast. Nipple contain circular smooth muscles and also longitudinal smooth muscles. Circular smooth muscles stiff the nipple and longitudinal smooth muscles flat the nipple. It has modified sweat and sebaceous gland, rich in nerve supply, and has many sensory and organs at the end of nerve fibers. निप्पल में ना बहुत ज़्यादा सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि जब बेबी सकलिंग के दौरान निप्पल को टच करता है। जब बेबी सकलिंग के दौरान निप्पल को टच करता है तो फिर ना उधर सेंसरी इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं और वो ब्रेन की तरफ जाती हैं। ब्रेन उनको डिटेक्ट करता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। जितना ज़्यादा टच होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा और उतनी ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। ये हमें बचपन से ये हमें पता है, हम 10th क्लास से ही पता है। एरियोला एरियोला जो होती है वो स्किन होती है सराउंड द बेस ऑफ द निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म द सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरियोला. If this is nipple and this is the circular area, pigmented area that surrounds the base of the nipple is called areola. Here we can see this is the areola. This pigmented black brown area is called areola. Areola region is rich in sebaceous gland mostly at the outer margin. अब जो अरेगुलर जो होता है ना वो स्पेशियस ग्लैंड उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उसके आउटर मार्जिन पर. अरेगुलर बिकम इन लार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म द रेज ट्यूबरकल ऑफ द मिटगुमरी. मतलब जब प्रेगनेंसी होती है या लैक्टेशन पीरियड होता है ना मदर का, तो जो अरेगुला हो जाते हैं वो लार्ज हो जाते हैं और रेज्ड कर देते हैं, रेज्ड कर देते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमरी ग्लैंड. अब जो स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, जो मोंटगोमरी ग्लैंड होते हैं, वो ऑयली सिक्रीशन सेक्रेट करते हैं जो लुब्रिकेट करते हैं निप्पल को और एरियोला को. और ये जो ऑयली सिक्रीशन होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं क्रैकिंग से ड्यूरिंग लैक्टेशन. Areola also contain some sweat gland and accessory mammary glands. Skin of the nipple and areola devoid of hair. मतलब स्किन और जो होती है ना निप्पल और एरियोला की, उसके ऊपर कोई हेयर्स नहीं होते. देयर इज़ नो फैट सबजेसेंट, मतलब इनके नीचे कोई भी फैट नहीं होती. बिलो द एरियोला देयर इज़ अ lactiferous sinus where stored milk is seen. Here we can see below the areola there is a dilated portion that is called lactiferous sinus where the stored milk can be seen. Now we discuss the parenchyma. Parenchyma is also called mammary gland. Mammary gland is compound tubulo-alveolar gland which secretes milk. No capsule and it lies in the superficial fascia. Here we can see कंपाउंड ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं. और ट्यूब्यूलो एलिवेलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका सक्रीटिंग पोर्शन है ना वो ट्यूब्यूल की शक्ल में है और एलिवेलाई या एसिनस की शक्ल में भी है, इसलिए इसको कंपाउंड ट्यूब्यूलो एलिवेलर ग्लैंड कहते हैं. इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता क्योंकि ये सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. Gland consists of 15 to 20 lobes. Each lobe is cluster of alveoli and is drained by the lactiferous duct. Lactiferous duct converges towards the nipple and open to it. Near the termination, each duct has a dilated portion called lactiferous sinus. Here we can see there are 15 to 20 lobes.
which drain into lactiferous duct. Near the lactiferous duct, near the termination, there is a dilated portion called lactiferous sinus, and these lactiferous duct converge and open into nipple. Now we discuss stroma. Stroma is the supporting framework of the gland. It is partly fibrous and partly fatty. Fibrous part जो होता है वो septa बनाता है, known as suspensory ligament of Cooper, which anchor the skin and gland to pectoral fascia. Here we can see the green fiber-like structures in the breast structure that is called the suspensory ligament of Cooper. It is the fibrous part of the stroma, and that anchor the skin and पैरेन्काइमा, जो कि स्किन और पैरेन्काइमा को किसके साथ एंकर करता है, नीचे जो होता है पेक्टोरल फेशिया के साथ उनको एंकर करता है। ये हो गई स्किन, और ये हो गया मेमरी ग्लैंड हो गया, और उन तीनों को एंकर करता है, और उन किसके साथ एंकर करता है, ये इसके साथ पेक्टोरल फेशिया के साथ। और इसका दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा का दूसरा पार्ट होता है फैटी पार्ट होता है। फैटी पार्ट जो होता है वो मेंटेन करता है बल्क ऑफ द ग्लैंड, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोलर। मतलब ये देखें, ये जो येलो पार्ट है ना, जो कि मेन बल्क बनाता है मेमरी ग्लैंड का, और ये प्रेजेंट नहीं होता है जस्ट बीनीथ द निप्पल और एरियोला के बगैर। ये पूरे ब्रेस्ट को इसने सराउंड किया होता है, लेकिन निप्पल और एरियोला के नीचे ये प्रेजेंट नहीं होता। नो वी डिस्कस द ब्लड सप्लाई। मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो हाईली वेस्कुलर होते हैं। उनको मेन 3 ब्रांचेस जो होते हैं, 3 आर्टरीज की ब्रांचेस सप्लाई करती है। एक जो होते हैं वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, और जो खुद ब्रांच होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। और जो दूसरी जो होती है ना आर्टरी होती है, वो होती है एक्सिलरी आर्टरी होती है, और उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी होती है, एक थ्रोकोक्रोमियल आर्टरी होती है, और एक होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और तीसरी जो आर्टरी होती है और वो होती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और उसकी लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं। ये देखें, ये हो गई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो सप्लाई कर रही हैं। और ये हो गई एक्सिलरी आर्टरी, और इसकी 3 ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, सुपीरियर, थ्रोकोक्रोमियल एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। और ये हो गई पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की ब्रांचेस जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही हैं। ये ज़्यादातर जो होती है ना, दिस आर्टरीज जो होते हैं कन्वर्ज ऑन द ब्रेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फार्म फ्रॉम एंटीरियर सरफेस। ये जो ब्रांचेस होती हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट की एंटीरियर सरफेस के ऊपर कन्वर्ज होती हैं और उसी को सप्लाई करती हैं, जबकि उसकी पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो रिलेटिवली एवस्कुलर होती है। नो वी डिस्कस द वेनस सप्लाई। वेनस वेन्स जो होती हैं वो फॉलो करती हैं आर्टरीज को। दे फर्स्ट कन्वर्ज टूवर्ड्स द बेस ऑफ द निप्पल एंड फॉर्म एन anastomotic venous circle from where veins run in superficial and the deep fascia। सबसे पहले जो वेन्स होती हैं वो आर्टरीज को फॉलो करती हैं, और निप्पल की बेस पर एक अनस्टोमोटिक वेनस सर्कल बनाती हैं, जहाँ से सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया की तरफ वेन्स निकलती हैं। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ना, सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स निकलती हैं। जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो किस में ड्रेन होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में, और सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक में। और जो डीप वेन्स होती हैं वो किस में ड्रेन होती है, आर्टरीज में और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। Now we discuss the nerve supply of the breast. Breast is supplied by anterior and lateral cutaneous branches of the 4th to the 6th intercostal nerves। ये इस नर्व्स जो ये इंटरकोस्टल नर्व्स है 4 to 6, उसकी जो क्यूटेनियस ब्रांचेस है इंटीरियर और लेटरल, वो उसको सप्लाई करती हैं। और ये जो नर्व होती हैं, दीज नर्व कनकेव,
concave conveys sensory fibers to the skin, and the autonomic fibers to the smooth muscles and the blood vessels. These nerves do not control the secretion of the milk. It is controlled by the posterior lobe of the hypophysis cerebri uh, and hormone prolactin. And that's all.